Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to start reading of chapter number 7, Rocks and Minerals. Rocks are found everywhere on the earth. Rocks earth में सभी जगहों पे मिलते हैं. They are present on the mountains, under the soil and under water. Rocks mountains में, under the soil as well as under the water प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट रॉक्स आर कम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर मिनरल्स. मोस्टली जो रॉक्स है वो कम्बिनेशन होते हैं वन और मोर देन वन मिनरल्स के. सम रॉक्स सच एज लाइमस्टोन कंटेन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. कुछ रॉक्स लाइक लाइमस्टोन ये कैसे बनते हैं? ये एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से भी बनते हैं. There are different ways in which rocks are formed. Different ways से rocks formed होते हैं. Accordingly, they are grouped as igneous, sedimentary and metamorphic. और उसी के अकॉर्डिंग जो रॉक है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ igneous rocks, then sedimentary rocks and third one is metamorphic rocks. Kinds of rocks. Igneous rocks. Igneous is a Latin word which means heat or fire. Igneous एक Latin word है जिसका मीनिंग होता है heat और fire. Under the earth's crust lies a melted rock called magma. ये देखो अर्थ के क्रस्ट के अंडर क्या है? ये मैग्मा का चैम्बर है. This magma exists in a molten state. ये जो मैग्मा है ये molten state में होता है due to the extreme temperatures under the earth crust. earth crust के अंदर जो temperature है that is between 600 degree Celsius and 1200 degree Celsius के बीच में होता है. इसलिए जो मैग्मा है ये molten state में होता है. Igneous rocks are formed when magma cools and hardens. जब ये मैग्मा कूल और हार्ड हो जाती है तो ये igneous rock बन जाता है. Igneous rocks are formed when magma cools and hardens. जो igneous rock है वो तब फॉर्म होता है जब मैग्मा कूल और हार्ड हो जाती है. समटाइम्स जो मैग्मा है वो इनसाइड द अर्थ सरफेस कूल हो जाती है और किसी किसी केसेस में ये वोल्केनो के थ्रू अर्थ के आउटसाइड इरप्ट हो जाती है. When the magma from under the earth crust comes out during volcanic eruption, जब volcanic eruption के ड्यूरेशन में जो मैग्मा है वो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाती है. some of it gets spread over the earth surface. वो अर्थ सरफेस पे स्प्रेड हो जाती है. यहाँ पे देखो अर्थ सरफेस पे ये स्प्रेड हो गई. slowly and gradually it cools down and forms rock. और slowly ये क्या बन जाते हैं? ये हार्ड कूल हो जाती है और हार्ड हो जाती है और रॉक में फॉर्म हो जाती है. Granite, obsidian, basalt and pumic are the good examples of igneous rock. Igneous rock के examples क्या होते हैं? Granite, obsidian, basalt, pumic ये सभी igneous rock के examples हैं. Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed by the deposition of sediments over time. Long period of time तक जब तक सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं तो ये क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं. दीज सेडिमेंट्स कैन इंक्लूड मिनरल्स, सैंड, मड एंड पेबल्स. जो ये सेडिमेंट्स हैं इनमें क्या हो सकता है? मिनरल्स भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकता है, मड एंड पेबल्स भी हो सकते हैं. दीज रॉक्स अपीयर इन लेयर्स. ये जो रॉक है ये लेयर में अपीयर करता है. The oldest rocks are present at the bottom with newer rocks above them. जो oldest rock है वो बिल्कुल bottom में होगा और जैसे जैसे new rocks आते जाएंगे वो उनके above layer बनाती है. When the water flows down through a mountain slope, जब water mountain slopes के through flow down करता है it breaks some of the rocks ऑफ द माउंटेन्स. इससे क्या होता है? जो रॉक्स हैं माउंटेन के वो ब्रेक हो जाते हैं. डैट कम ऑन इट्स वे और वो इस वे में आ जाते हैं. लाइकवाइज स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल ऑल्सो कॉज ब्रेकेज ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. और इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेनफॉल से भी रॉक्स की ब्रेकेज होती है स्मॉल पीसेस में.
These small pieces of rocks and soil particles are carried away by flowing water or wind to some other places. और यही जो small pieces of rocks होते हैं या soil particles होते हैं, ये flowing water के साथ या wind के साथ carried away हो जाते हैं to other places. This way layers of sediments pile up at a particular place. और इसी तरीके से सेडिमेंट्स के जो लेयर्स हैं वो पाइल अप हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में एंड गेट सीमेंटेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर में ये सीमेंटेड हो जाते हैं, थस फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है। सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट एंड लाइमस्टोन्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। Metamorphic rocks. The word metamorphic came from the Greek word meta. जो metamorphic word है वो Greek word meta और morph से बना है। meta का means होता है change and morph का meaning होता है form. Metamorphic rocks are igneous and sedimentary rocks. जो metamorphic rocks हैं ये igneous और sedimentary rocks हैं that have been transformed under extreme heat and pressure, जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ड्यू टू दिस हीट एंड प्रेशर दे डू नॉट मेल्ट। ये हीट और प्रेशर से मेल्ट नहीं होते। रेदर द मिनरल्स इन देम आर चेंज्ड केमिकली टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकली चेंज हो जाते हैं और ये फॉर्म क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। These rocks are more compact and dense. जो ये रॉक होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और डेंस होते हैं। They are the least common of all the 3 types of rocks. Marble, slate, quartzite and gneiss are some examples of the metamorphic rocks. ये सभी metamorphic rocks के examples हैं। Now let us read about minerals. A mineral is an element or a chemical compound. जो mineral है वो एक element है या फिर वो एक chemical compound है that is usually crystalline, जो usually crystalline होता है and has been formed as a result of geological process, और ये form करता है because of geological processes. Minerals are found inside or on the earth's crust. जो minerals है वो अर्थ क्रस्ट के इनसाइड मिलता है। मोस्ट मिनरल्स आर ओब्टेन्ड बाय डिगिंग माइंस और क्वारीज। जो मोस्टली मिनरल्स होते हैं वो ओब्टेन किए जाते हैं बाय डिगिंग माइंस। सम वेराइटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। कुछ वेराइटी मिनरल्स के फाइंड आउट होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ ओर्स। अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर नेचुरल सॉलिड मटीरियल्स। जो ओर्स हैं वो नेचुरल सॉलिड मटेरियल्स हैं विच कंटेन मिनरल्स, जो मिनरल्स को कंटेन करते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स, और मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर्स के थ्रू। सम मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड आर मेटालिक। कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन और गोल्ड जो होते हैं वो मेटालिक होते हैं। अदर मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज एंड कैल्काइट आर नॉन मेटालिक। जो अदर मिनरल्स जैसे कि क्वार्ट्ज और कैल्काइट ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स सच एज हेमेटाइट। जो आयरन है उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर्स के थ्रू। मोस्ट ऑफ द आयरन ओर इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, और मोस्टली आयरन ओर का यूज़ होता है टू मैन्युफैक्चर स्टील। एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड कॉपर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायराइट। जो एल्यूमिनियम है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से, और जो कॉपर है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम पायराइट। The process of finding, extracting and purifying metals from mineral ores present in rocks is called metallurgy. जो प्रोसेस जिसमें मिनरल्स ओर में से मेटल्स को फाइंड आउट, एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई किया जाता है उसे मेटलर्जी बोला जाता है। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स। जो मेटल्स हैं उसे यूज़ किया जाता है मशीन्स बनाने में, आर्टेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा। Metals like gold and silver that are obtained from minerals are suitable for making jewelry. और जो metals होते हैं जिनसे हम गोल्ड या सिल्वर बनाते हैं उसे obtain किया जाता है मिनरल से, और ये ज्वेलरी बनाने के लिए बिल्कुल suitable होता है।
नाउ नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? प्रीशियस स्टोन्स सच एज डायमंड्स, एमरल्ड्स, रूबीज, टोपैज एंड सफायर्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड। जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं लाइक डायमंड, एमरल्ड्स, रूबीज, टोपैज, सफायर, ये सभी क्या है? ग्राउंड से ऑब्टेन किए हुए हैं। दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, और इन्हें यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ऑल द मिनरल्स विच फॉर्म रॉक्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी मिनरल्स हैं जो रॉक से मिलते हैं वो नेचुरल हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बट कोल एंड पेट्रोलियम आर मिनरल्स फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बट जो कोल है और पेट्रोलियम है ये मिनरल्स कहाँ से फॉर्म होते हैं? लिविंग थिंग्स से। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, और इनको ऑब्टेन किया जाता है डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट मटीरियल्स। जो कोल है वो कैसे फॉर्म होता है? डेड प्लांट मटीरियल से, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट मटीरियल से। व्हेन द डेड ऑर्गेनिजम्स रॉट अवे, जब डेड ऑर्गेनिजम्स रॉट अवे हो जाते हैं, दे फॉर्म अ थिक लम्पी ब्राउन मटीरियल कॉल्ड पीट। तब वो क्या हो जाते हैं? वो एक थिक लम्पी ब्राउन मटीरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे बोला जाता है पीट। Tons of water, mud and sand press the peat and squeeze it under the ground. जब उस पर tons of water लगता है, mud और sand से ये प्रेस हो जाता है और ये ग्राउंड के अंदर स्क्वीज हो जाता है। This turns peat into coal, और इसी से क्या होता है? पीट कोल में कन्वर्ट होता है। Coal is used as fuel. It is also used to generate electricity. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू कोल इज़ कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोल एक फ्यूल है जिसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जब कोल के थ्रू जनरेट की जाती है तो उसे बोला जाता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस मैनर। जो पेट्रोलियम है वो भी इसी मैनर में फॉर्म होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीट एंड वेट ऑफ द रॉक्स ऑन द पाइल्स ऑफ डेड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टर्न देम इनटू लिक्विड ऑयल। जब प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय हीट एंड वेट ऑफ द रॉक्स, किन पे? पाइल्स ऑफ डेड या रोटिंग प्लांट्स और एनिमल्स पे, तो ये लिक्विड ऑयल बन जाता है। फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सभी पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। दीज फ्यूल्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। और जो ये फ्यूल्स हैं ये लार्ज स्केल में यूज़ होते हैं फॉर कुकिंग के लिए, इवन टू रन व्हीकल्स एंड मशीन्स। अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। प्लास्टिक्स भी बनते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज़ वेरी यूजफुल इन आर एवरीडे लाइफ, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, और इसीलिए इन्हें ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। द डिपॉजिट ऑफ मिनरल ओर्स, कोल एंड पेट्रोलियम अंडर द अर्थ्स क्रस्ट आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी। जो डिपॉजिट है मिनरल ओर्स के, कोल और पेट्रोलियम के अंडर द अर्थ क्रस्ट, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। वंस दे गेट एग्जॉस्टेड दे विल नॉट रिप्लेनिश्ड इवन इन थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो ये दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगता है, और ये इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी नहीं बनेंगे। as it takes millions of years for these natural resources to be formed, because millions of years लग जाते हैं इन natural resources को form होने में। Thus they should be used wisely, इसीलिए हमें इनका use properly करना चाहिए। Is it clear, students? So today we have completed reading of chapter 9. Find bookwork of this chapter. Okay, students? Thank you and goodbye.